Okay, so hi everyone, good afternoon. I will be your trainer for the CPC. Okay, so first today is a demo class. We'll see the basic about CPC and what is medical coding is all about. Okay, so first I will introduce myself. This is Meenal Salve and I have started my career in medical coding in 2015. Okay, after my graduation, I have started with medical coding. So I have total 10 years of experience in medical coding and medical billing field. And I have also done my MSc. I have done CPC course. Yes, I'm CPC certified, and I'm able to uh, see the all specialities like surgery, radiology, ENM. I have worked with all specialty, and I'm also working with the medical billing. Okay, so this is all about me, and I hope you all are good to go for today's session. So today we will see the basic introduction session about the your medical coding. So I will help you to understand what is the medical coding is and what is the difference between US healthcare and how we are dealing in our India. Okay, so we will understand the basic thing and later we will see into the we'll get to know the deep knowledge about this field on the later session. Okay, so I hope everyone can able to see my screen. And in between, if you have any doubt, you need to ask anything, you can stop me and you can ask that as well. Okay, so first I will tell you the difference between US healthcare and India, how we are following. Suppose we are getting sick, so we are directly going to the doctor. We are taking medicine in India, and we are paying directly to the doctor. Doctor will give you a medication. So in US, this will not gonna work. In US, what they are doing, if they are feeling sick, they are going to the doctor. Doctor will prescribe medicine. They will give the medicine, but we should not pay to the doctor. Okay, so there will be a certain policies or insurances that will take care of your payment. Okay, so that insurance will analyze medical record. They will analyze what CPT, what codes we have added. Okay, so in that scenario, we are gonna add the codes related to that medical record. So we will be the first person to add the code and check the medical record. So for that reason, we need a people from life science background. See, if you have knowledge about life science, then human anatomy, you are good to go with this thing. Why? Because you have to analyze the medical record in this session, in this scenario. After analyzing, we have to transfer that medical code record into some codes. Okay. So we will see how that process will going on. Later on, we have to submit it to the insurance. The insurance will review all the medical records, okay, and they will pay to the doctor. This is the process they are following in US. Our side, we are going directly and we are paying to the doctor. Basically, medical coder is working to get paid to the doctors. Okay, so this is all about the cycle. Okay, that cycle is like revenue cycle, you can say RCM cycle. This is the basic thing or introduction about medical coding. What is medical coding? So you can see they have given one definition. A healthcare provider review your complaint. Healthcare provider is always a doctor. Medical coding term, we are calling doctor as a provider, healthcare provider. Okay, so what they are doing? They are going to review. Review का मतलब है they will analyze your record, okay, your complaint and medical history, makes the expert assessment of what wrong and how to treat you, and it documents your visit. So whenever we are going to the doctor what they will do, they will document your visit. They will make a record, okay, and this documentation
It this हेलो is हेलो। with the documentation. Yes. मैम प्लीज स्पीक इन हिंदी। Okay, okay, sure, sure. Okay, so I will tell you in Hindi. So अभी तक मैंने ये बताया कि what is the difference between US healthcare और हमारा इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो। तो यूएस में कैसे होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डायरेक्टली डॉक्टर को पे नहीं करते। हैव टू गेट एन इंश्योरेंस, हमें एक इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। तो वो इंश्योरेंस आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, आपके कोड सब एनालाइज करके डॉक्टर को पे करता है। ओके, लाइक दैट इन इंडिया व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर को पे करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूएस एंड इंडिया। ओके, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मेडिकल कोडर्स। मेडिकल कोडर्स के पास एक रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है। तो वो मेडिकल रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसमें। और फिर वो कोड इंश्योरेंस टीम के पास जाता है एनालाइज करने के लिए। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव स्पोकन। अभी तक मैंने जो बताया, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग, द बेसिक आइडिया अबाउट मेडिकल कोडिंग। ठीक है, और मेडिकल कोडर के लिए एलिजिबिलिटी इज लाइक आपको लाइफ साइंस से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और यू हैव टू नो द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्राइटेरिया आपके फुलफिल है तो यू कैन गो विथ दिस वे। ठीक, उसके बाद मैंने उनको समझाया व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मेडिकल कोडिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। Everyone is comfortable in Hindi, right? I will continue in Hindi only. Yes, yes, I think all comfortable. Yeah. यस। ठीक है। ओके, तो ये हमने अभी तक जो है मेडिकल कोडिंग की डेफिनेशन देखी। हम क्या करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड कोड। इज योर मेडिकल कोडिंग, दैट्स इट। देयर इज नो अदर टर्म्स टू डिफाइन द मेडिकल कोडिंग। यू कैन सिंपली से, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम ट्रांसलेट करते हैं स्टैंडर्डाइज कोड में। ओके, तो हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज कोड क्या है। स्टैंडर्डाइज कोड वी विल सी। स्टैंडर्डाइज कोड के टाइप होते हैं, तीन टाइप है। एक है सीपीटी कोड, दूसरा है आईसीडी कोड, और तीसरा है एचसीपीसीएस कोड। ये तीन तरह के कोड होते हैं जिसमें हम मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो सीपीटी कोड क्या है? सीपीटी कोड इज अ करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है। प्रोसीजर कोड के लिए सीपीटी कोड यूज होते हैं। तो प्रोसीजर कोड क्या है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं खांसी के लिए, कफ। ओके, सो फॉर कफ डॉक्टर क्या करता है, ओके आपको कफ है तो इफ इट इज सीवियर देन डॉक्टर बोलता है कि ओ यू कैन टेक एक्सरे, एक्सरे निकालने के लिए बोलता है डॉक्टर। सो एक्सरे इज व्हाट प्रोसीजर, डॉक्टर ने एक प्रोसीजर फॉलो किया है। सो जो भी डॉक्टर प्रोसीजर फॉलो करेगा वो प्रोसीजर के लिए हम सीपीटी कोड अपेंड करते हैं, देते हैं। उसके बाद आता है आईसीडी कोड। आईसीडी कोड क्या है? इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सो यहाँ पे आप डिजीज देख सकते हैं वर्ड। तो आईसीडी कोड है जो भी आपको डिजीज है, जैसे खांसी है, सर्दी है, फीवर है, कैंसर है, ओके, फ्रैक्चर है, एनीथिंग जो डायग्नोस आपको हुआ है, जो आपका डिजीज है, वो आता है आईसीडी में।
तो आपको समझ में आएगा द मेन डिफरेंसेस, एक जो है वो प्रोसीजर के लिए बिल होता है, दूसरा जो है वो डायग्नोसिस के लिए हम बिल करते हैं कोड्स। नेक्स्ट इज HCPCS कोड, दिस हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। में क्या होता है, जो भी हम जैसे कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं, लाइक स्ट्रेचर यूज किया या हमने व्हील चेयर यूज किया, सो इन दैट रीजन वी हैव टू गो विथ HCPCS कोड। तो हमने देखा डायग्नोसिस कोड्स कौन से हैं, दैट विल बी योर ICD कोड। प्रोसीजर कोड आपके कौन से है, CPT कोड और HCPCS कोड। ये 3 तरह के कोड्स होते हैं जिसमें हम मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हम देखेंगे CPT कोड क्या है। सो CPT कोड जो है वो डेवलप बाय अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ईयरली, AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएटेड जो एसोसिएशन है वो ईयरली अपडेट करता है CPT में हर साल नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। कुछ कोड जो है वो डिलीट होते हैं, कुछ रिवाइज होते हैं, कुछ न्यू ऐड होते हैं, कुछ गाइडलाइंस चेंज होती है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, अभी क्या रिक्वायर है, अकॉर्डिंगली वो चेंजेस होते रहते हैं, विच विल बी ईयरली, और वो चेंजेस करता है AMA। तो CPT बुक्स होती है उसके लिए। तो CPT बुक्स में कोड्स होते हैं, वो अल्फाबेटिकली इंडेक्स में होता है। जैसे A से स्टार्ट हुए गए कोड है, B से, C से, D से, ऐसे कोड्स रहते हैं। एंड मोस्टली ABCD जब हम ICD कोडिंग करते हैं उसमें आता है। तो CPT बुक के सेक्शंस रहते हैं। CPT बुक के सेक्शंस में क्या आता है, ENM आता है, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, अनस्थेशिया आता है, सर्जरी आता है, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, मेडिसिन। ओके, तो जैसे कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी सर्जरी परफॉर्म होती है, अनस्थेशिया भी दिया जाता है, रेडियोलॉजी होती है, मेडिसिन के लिए, पैथोलॉजी के लिए। तो उस अलग अलग सेक्शन के लिए, वो अलग अलग स्पेशलिटी के लिए अलग अलग प्रोसीजर कोड्स है हमारे पास। ओके, तो लाइकवाइज have different section in your CPT book। वैसे CPT बुक हमें फॉलो करना है। और उसके बाद सपोज इफ यू आर स्टडिंग अबाउट अनस्थेशिया, अनस्थेशिया चैप्टर एक अलग रहता है, फिर वो चैप्टर के अंदर गाइडलाइन होती है, एंड आफ्टर दैट गाइडलाइन के बाद सर्जरी की गाइडलाइंस चालू होती है। ऐसे अलग अलग गाइडलाइंस है, हम CPT बुक भी देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। उसके बाद ICD होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ICD इज ऑल अबाउट योर डिजीजेस। तो जो डिजीज है वो उसके लिए हम कोड देते हैं, दैट विल बी ICD कोड। तो यू कैन सी ओवर हियर राइट कॉर्नर में डाउन M84.311A, जो 7 डिजिट का आपको कोड दिख रहा है, दैट इज योर ICD कोड। ओके, तो ICD कोड 3 से 7 डिजिट तक रहते हैं। डिजिट जो रहता है वो अल्फाबेट रहता है हमेशा, सेकंड डिजिट न्यूमेरिकल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया M84। और जो पहले 3 डिजिट है वो नॉर्मली बताते हैं कि ये जो डिजीज है वो किसके लिए है, लाइक अभी दिस इज M84, तो M84 बोन से रिलेटेड है। उसके बाद वाला जो अल्फाबेट आता है, इट विल बी लाइक कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स है, एनाटॉमी साइट क्या है, इटियोलॉजी क्या है, वो बताता है। और जो 7th डिजिट है, लास्ट डिजिट, इट विल बी योर इनकाउंटर, इनिशियल एनकाउंटर है, मतलब पहली बार चोट लगी है, जब पहले कभी हुआ है, दैट दे विल शो इन योर 7 डिजिट। सो ऐसे ICD में 7 डिजिट के कोड्स रहते हैं। ओके, तो पहले हमने देखा CPT कौन डेवलप करता है, AMA डेवलप करता है, वैसे ही ICD WHO डेवलप करता है। ओके, the World Health Organization approves the ICD updates 2022 एंड ICG जो है वो ईयरली 2 बार अपडेट होता। ओके, इट अपडेट ट्वाइस
in a year. तो मोस्टली मेजरली हम आईसीडी और सीबीटी ही कोड करते हैं इन योर मेडिकल बिलिंग. अगर इफ वी नीड टू कोड एचसीपीसीएस तो एचसीपीसीएस के लिए भी अलग गाइडलाइन है, उसके भी अलग बुक रहती है. ओके, सो मोस्टली वी आर फॉलोइंग आईसीडी बुक्स एंड सीपीटी बुक्स. तो मेडिकल कोडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीपीटी डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस है. ओके, तो वो सर्टिफिकेशन कहाँ से है? कब सम सर्टिफिकेशंस आर फ्रॉम AAPC, some certification is from AHIMA, AHIMA. ओके, सो ये जो है वो सर्टिफिकेशन हमें देती है मेडिकल कोडिंग की. दिस ऑल आर फ्रॉम यूएस जो इंस्टीट्यूट है. सो उसके AAPC के डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है. किसी सर्टिफिकेशन है दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर. दूसरी सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड आउटपेशेंट कोडिंग, CIC है इनपेशेंट कोडिंग, CRC है रिस्क एडजस्टमेंट कोडर, अहीमा का CCS है. ओके, सो ये 4 सर्टिफिकेशन है. वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन देता है AAPC. जो मेजर सर्टिफिकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया. इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है ये सारे सर्टिफिकेशन में? तो CPC जो है ना, सो CPC सारी स्पेशलिटी कवर करता है. उसमें आउट पेशेंट भी आप सीखते हो, इन पेशेंट भी सीखते हो, सर्जरी भी सीखते हो, रेडियोलॉजी भी सीखते हो, एनेस्थेसिया भी सीखते हो. सो इट विल बी एवरीथिंग यू विल कवर इन योर CPC, CCS एज वेल. बट मोस्टली डिमांड जो रहती है वो CPC सर्टिफिकेशन की रहती है. ट्रास जो दूसरे सर्टिफिकेशन है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया के लिए है. जैसे आउट पेशेंट का ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, कि जैसे इन पेशेंट का ही मिलेगा. कभी कभी सर्जरी रिलेटेड भी है, वो सर्जरी का ही सर्टिफिकेट मिलेगा. जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया CPT में. ओके, ये सारे जो सेक्शन है उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन है. अगर आपको सारे सेक्शन का एक ही सर्टिफिकेट चाहिए देन यू हैव टू गो विथ CPC और यू कैन गो विथ CCS. अगर आपने CPC किया तो आपको सारे स्पेशलिटी और सारे सेक्शन का नॉलेज आ जाएगा. ओके, इफ यू आर डूइंग ओनली COC, CIC तो आपका नॉलेज जो है वो लिमिटेड रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड रहेगी. Okay, so this is all about certification in medical coding. Okay, so अभी हम देखेंगे हम क्यों सर्टिफिकेशन क्यों ले, why certification is important. Okay, so medical coding courses are important because they prepare students a career in medical coding by providing the skill and knowledge. तो अगर आपको सर्टिफिकेशन मिला, इफ यू आर सर्टिफाइड, देन अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के लिए, सो दे विल गेट टू नो ओके यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस फील्ड एंड यू आर स्किल्ड इनफ टू डू द मेडिकल कोड. सो वो क्या इंश्योर करते हैं, वॉट एवर कोड्स यू विल गिव it will be accurate if you are certified. It translate patient information into universal language and it is an advanced level. So this is all things they will think about it. Okay, so अगर आपको अगर वो hire करते हैं तो you will get good payment. Later they should not मतलब उन्हें आपके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा. तो पता है कि आप सर्टिफाइड हो, then you have knowledge about your medical coding, CPT, ICD, everything. आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तक ट्रेन करेंगे अबाउट देयर गाइडलाइंस. वो क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. सो दैट ट्रेनिंग दे विल प्रोवाइड. लेटर देन यू कैन गुड टू गो. सो मोस्टली जो मार्केट में है दे आर प्रेफरिंग अ सर्टिफाइड कोडर. ओके,
तो सर्टिफाइड कोडर के फायदे आपको क्या मिलेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, यू विल गेट ग्रेट पे, यू कैन वर्क रिमोटली। अभी कोविड के बाद इट इज लाइक you will get work from home. If you are certified and if you are good in their project, they will give you the remote work. Okay? And it's a rewarding career. You can always learn a good thing in your medical coding. ऐसे नहीं है कि आपने मेडिकल कोडिंग में जॉब किया 1 या 2 साल, उसके बाद आपको लगा अरे इस पे कुछ ग्रोथ ही नहीं है, मैं कुछ ज्यादा नहीं सीख रहा हूँ। ऐसे कभी नहीं होगा। You will always learn a good thing. Okay? So, and you never stop learning. जैसे मैंने आपको बताया. There are more career opportunities are there. You can improve your social interaction and training will be short and flexible. So ये सारे benefits मिलते हैं if you are certified. अभी आपका डाउट ये होगा कि नेसेसरी है क्या सर्टिफिकेशन करना? नेसेसरी नहीं है. You will also get job if you are not certified, but will be a limitation in your job. आपको ज्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा, देन आपको मतलब रिमोट वर्क नहीं मिल सकता है, आपको सीखने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कंपनीज हायर करेगी तो दे वांट यू टू वर्क फास्ट, राइट? वो यही चाहेगी कि आप जल्दी से जल्दी काम शुरू करो. अगर आप सर्टिफाइड हो तो उन्हें लगेगा ओके दिस पर्सन इज सर्टिफाइड, तो वी कैन गो डायरेक्टली टू वर्क. ओके, सो हम ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते बहुत सारे कंपनीज. सो दे प्रेफर सर्टिफिकेशन फॉर द मेडिकल कोडिंग, बट विदाउट सर्टिफिकेशन ऑल्सो यू कैन गो फॉर द वर्क. Later is their growth in India. As you know, in India, this industry is growing so fast. Like when I started my career in 2015, there were only few companies about medical coding. But now, everywhere I can see the coding companies are in Noida, then in Chandigarh, then Mumbai and South, everywhere. And what it is, they have a demand of a medical coder. It's a high demand. Salary, you will get good salary. Opportunities you will get, and you can start quickly. And you will never stop learning in this way. Okay? अगर समझ लो आपने स्टार्ट किया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया रेडियोलॉजी का, तो आपने रेडियोलॉजी सीख लिया 1 साल तक. यू विल गेट एक्सपर्टाइज इनटू रेडियोलॉजी. तो आप करियर स्विच करके आप सर्जरी भी जा सकते हो, आप सर्जरी सीख सकते हो. तो सर्जरी के सीखने के बाद आपकी ग्रोथ बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हायर डिमांडिंग कोडर्स है दैट विल बी इन सर्जरी और आईपीडीआरजी. ये दो ऐसे स्पेशलिटीज हैं जिसमें हाई डिमांड है. ओके, सो इफ यू आर गुड नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, यू विल गुड पे, और आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको यू विल गेट बोर्ड ऑफ दिस फील्ड. देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न. देयर इज ऑलवेज अ चांस टू लर्न इन दिस फील्ड. So you can see, now we will talk about the money. Obviously everyone is working for money. So you can see the difference. If you are starting with a normal entry level medical coder, your salary will be 2 lakhs to 3 lakhs. Okay. This actually ये picture बहुत पुराना है. So now you can get up to 4 lakhs also. They will test your knowledge. आपको वो इंटरव्यू में एग्जामिन करेंगे कि आपका नॉलेज कितना है अबाउट दिस. अकॉर्डिंगली एंट्री लेवल पे ही आपको 4 लाख तक आपका एनुअल पैकेज हो जाता है. एंड इफ यू आर सर्टिफाइड तो 450 तक भी मिल जाता है, 455 lakhs. देन इसके बाद यू कैन गो अप टू, आफ्टर सम पीरियड यू विल बिकम अ सीनियर मेडिकल कोडर. भी आपको बोनस मिलता है, देन यू विल गेट द गुड सैलरी एंड यू हैव टू स्विच योर कंपनी. एज आई टोल्ड यू, आपको बहुत सारे जो दूसरे जो स्पेशलिटीज हैं, यू हैव टू कीप लर्निंग इन दैट स्पेशलिटी. तो आपकी जो सैलरी ग्रोथ है वो बहुत हाई हो जाती है. लेटर यू कैन बिकम सुपरवाइजर, टीम लीड और मैनेजर. देन एट मैनेजर लेवल योर सैलरी विल बी अप टू 10 lakhs. Okay, then you can keep moving to the director level. It will be 20 lakhs to 40, 30 lakhs.
how much knowledge you have in this field and how much specialty you have worked. ओके, जैसे आपने समझ लो कोडिंग में बहुत बहुत सारे स्पेशलिटीज कंप्लीट कर लिए, यू आर अवेयर अबाउट ऑल स्पेशलिटीज, यू कैन गो टू द बिलिंग एज वेल, मेडिकल बिलिंग। तो कोडर्स को एक फायदा है कि कोडर कैन स्विच टू मेडिकल बिलिंग, बट मेडिकल बिलर को कोडिंग में स्विच होने के लिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं। कोडर्स को इट इज अ बेनिफिट if you are a coding, you can go up to any field, you can go to charge entry, you can go to billing, you can go everywhere. Okay, that will be the later part. But first you have to go with your medical coding. So for that, eligibility criteria will be you have to have a knowledge about the human anatomy and life science graduate. So you can see the medical coding market, how it is growing. This is 2024 chart. Q3, it is $16 billion, 18 billion in 24, and 25, 26, it's keep on growing. Okay, so you will not get affected by any thing that your salary is not increasing, they are not growing. And if you are certified, you have many certification, you can go to US also, you can settle down there because US is hiring a lot of medical coders, but you have to go there, you have to get your certification, then you will get chance to be there in US and you can start career over there also. Okay. So what will be the objective in your course? So this is CPT code. We are going to study the CPT code. We are going to study ICD code. HCPCS कोर्स क्या है उसकी बुक के अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ आईसीडी कोडिंग की गाइडलाइंस कैसे है, आईसीडी कोड हमें कैसे एनालाइज करना है, कैसे अप्लाई करना है, मेडिकल कोड, मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो कैसे रीड करना है। सो ऑल दोस थिंग्स इट विल बी कवर्ड इन योर कोर्सेस। Identify the information appendices, CPT codebook. Explain the determination levels of ELM. Code wide variety of patient service. List major features. जैसे मैंने आपको बताया जो all जो features है ICD, CPT और SCPCS के, जो सारे features है वो कैसे use करने हैं, then हमें guideline कैसे read करनी है, क्या क्या different guideline है different chapters के लिए. So everything we will learn in the course. This is the course contain. इस दिन हम पढ़ाएंगे, we will learn the anatomy. We will overview the ICD-10 CM, applying ICD-10 CM guidelines, accurate ICD-CM-10 coding, introduction to CPC, CPT, HCPCS and modifiers. Integumental system हम learn करेंगे. Likewise, musculoskeletal, respiratory, cardio, lymphatic, digestive system, urinary, female reproductive system, endocrine, special senses, anesthesia, radiology, pathology, solution and management, medicine, and there will be the final exam for your course. Okay, so this is all about the course, and if you can go, अगर आप आगे जाओगे तो this is the introduction or you can see instructions of your CPC. आपको क्या करने हैं CPC के लिए प्रिपरेशन के लिए? We have to go through our courses. उसके बाद आपको असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइजेस जो है कंप्लीट करनी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं वो फॉलो करने हैं, वो कंप्लीट करने हैं. यू कैन रिव्यू ऑडियो वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो. उसके बाद चैप्टर वाइज एग्जाम्स भी होती है और जो आपका कोर्स है वो मैक्सिमम 3 to 4 months तक रहेगा. एंड कोर्स कंप्लीशन, दिस इज ऑल अबाउट सीपीसी, राइट? तो ये सीपीसी के लिए मैं बता रही हूँ आपको. सीपीसी का सर्टिफिकेशन के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ता है, आपको मॉक टेस्ट क्लियर करनी पड़ती है. देन if you are you have scored 70%, then you will become a certified coder. ये जो सारे जो सर्टिफिकेशन है वो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एपीसी से होते हैं और अहिमा से होते हैं.
Okay, so this is all about the basic thing that we have covered about medical coding. So, को कुछ भी doubt है, you can ask me. Okay? Meanwhile, I'll share my screen. I will. Yes, anyone they can ask me the question. Meanwhile, I'll open the CPT book. I will show you this CPT book as well. Please ask free to ask questions. कुछ भी डाउट है, नहीं समझा या फील्ड रिलेटेड कुछ डाउट है, करियर रिलेटेड कुछ डाउट है, सैलरी रिलेटेड है, एनीथिंग यू कैन आस्क मी. Yes. Somebody is asking me, right? Yes, you can go ahead. तो क्वेश्चन पूछिए, मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर दूँ. Ma'am, there is a question in chat box. I can't see in chat box anything. I can't see any question. Can you read it for me? Whatever the question is. What will be the expected salary as a freshers? Okay, so if you have good knowledge of, as a fresher also, will get salary up to 20-25 per month. If you're certified, it will go up to 30-35 as well. In future, AI will replace job in medical coding. No, so many students ask me this question that AI will replace this or no. AI कभी भी replace नहीं करेगा क्योंकि जो CPT codes है वो ऑलरेडी कोडेड ही आते हैं. अभी आप किसी भी कंपनी में आप जॉब करोगे तो आपको मेडिकल रिकॉर्ड आएगा, उसके सामने CPT कोड लिखा हुआ रहेगा. सो इट इज ऑलरेडी डन. उसके बाद आपको वो कोड्स जो CPT कोड्स है और जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो मैन्युअली रीड करना पड़ता है और आपको चेक करना पड़ता है. तो AI कभी भी कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा मेडिकल कोडिंग. There is next question also. In which month CPC exam is conducted? So CPC exam is conducted mostly in after 1 or 2 months, every 2 months. So आप जब भी prepare हो, then you can book your slot और आप exam दे सकते हो. Work from home is available as a freshers. फ्रेशर के लिए देखो, अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो एंड इफ यू आर अ फ्रेशर देन ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम डायरेक्टली नहीं देगी. अगर आपको उतना ही नॉलेज है, आप सर्टिफाइड होने के बावजूद भी आपको 6 महीने तक कंपनी में काम करना पड़ेगा, फिर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा आसानी से. डायरेक्टली आपको वर्क फ्रॉम होम कोई भी कंपनी नहीं देती है. बिकॉज कैसे होता है ना, इसमें प्रोवाइडर का मतलब डॉक्टर के पैसे इन्वॉल्व होते हैं. अगर आपने कुछ भी कोड गलत डाला तो इट विल अफेक्ट टू दी डॉक्टर. डॉक्टर को पेमेंट नहीं होता है, तो इट इज वेरी रिस्की जॉब और उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं डॉक्टर्स के. सो कोई भी कंपनी है तो इतना रिस्क नहीं लेती है. सो दे विल कॉल यू फर्स्ट. अगर आप सर्टिफाइड हो तो एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है आसानी से. बट फर्स्ट यू हैव टू बी देयर. और अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो and then it is very difficult to get work from home. They will ask you to come to the office. Okay. Okay. I think Mahi is there. She want to ask question, but Yes.
Mahi, are you there? Yes, ma'am. You want Yes, to ask? Mahi. Yes, Mahi, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन. Someone is asking about what is the qualification for this exam. Just I have told you qualification will be you have to be graduate, life science graduate. Okay. अगर आप लाइफ साइंस ग्रेजुएट नहीं हो then you must have to have the knowledge about your human anatomy. So that is must. कभी कभी क्या होता है जो कंप्यूटर साइंस वाले बीएससी कम साइंस वाले भी they want to go in this field they can also go but उनका जो नॉलेज है about this field वो अब उन्हें होना चाहिए and about anatomy. Basic criteria is you have to get graduated from the life science. Okay guys, so जैसे मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है सो ऐसे कोड्स रहते हैं सीपीटी कोड्स कैन सी सीपीटी कोड ऑलवेज 5 डिजिट के रहते हैं एंड दीज आर द कोड्स यू कैन सी दिस इज द सीपीटी बुक लुक्स लाइक इस सीपीटी बुक है तो अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं जस्ट टू इंट्रोडक्शन मैंने आपको बुक दिखाया तो जैसे इंडक्शन या यहाँ लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी सीपीटी कोड्स हैं वो आपको ये चैप्टर में मिलेंगे. वैसे बहुत अलग अलग चैप्टर्स है अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सीपीटी कोड्स. गाइस एनी अदर क्वेश्चंस? There are many people, Sushil, Sagar, Anjan, Ranjit, Sneha, Pala, Neha, Om Prasad, anything, कुछ भी आपको डाउट है पेमेंट के लिए या कोर्सेस कैसे रहेंगे, गाइडेंस कैसे मिलेगा, एनीथिंग यू कैन आस्क. Ma'am, Sakshi is there. She is asking about you conduct mock test or exam. Yeah, we are conducting mock test. And Shivraj is asking about what is I am doing B pharmacy right now. Am I eligible for this exam? Yeah, you can give the exam. I think And you will complete the after completing the B Farm, you can go for the exam. But before that, you have to start preparation. और ऐसे नहीं है कि आप मतलब सडनली 1-2 हफ्ते पढ़ोगे और एग्जाम दोगे ऐसे नहीं होता है. आप बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने पड़ते हैं और उसके बाद आप एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं अभी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा ही आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो. मतलब मेरा सजेशन है कि आप तभी एग्जाम दो क्योंकि व्हाई यू विल वेस्ट योर मनी राइट. And he also asking about life science course. Explain in details. What is life science? लाइफ साइंस का मतलब है जो भी हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लाइक सम पीपल आर डूइंग बॉटनी देन माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी. तो जो भी लाइफ साइंस रिलेटेड कोर्स है जैसे जो मैंने कोर्सेस आपको बताए उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो. मेन क्राइटेरिया ये है कि आपको ह्यूमन एनाटॉमी आनी चाहिए. इफ यू आर गुड इन ह्यूमन एनाटॉमी so you can go with this course but you have to be graduated. That is the must criteria. Okay, क्योंकि ये सारा जो है वो हेल्थ केयर रिलेटेड है और आपको आगे जाके मेडिकल रिकॉर्ड रीड करना है तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी समझ में आनी चाहिए. फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी के वो सब समझ में आना चाहिए. इसीलिए अगर आपका बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी
ये जो सारे फील्ड्स हैं उसके रिलेटेड है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू लर्न दिस इन दिस फील्ड। और आप बाकी के ग्रेजुएट भी है तो भी आप आ सकते हो, लेकिन अगर आप कंपनी में जाओगे एज अ फ्रेशर तो दे विल हायर ओनली लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स और योर मेडिकल कोडिंग। और अदर फील्ड जो कभी कभी रहती है जैसे बी कॉम रहता है एंड अदर थिंग्स, तो उनके लिए फिर सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी बन जाता है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट लाइफ साइंस मच, तो कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं करती है उन्हें। समवन आस्किंग अबाउट मैम ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट होता है? देखो ये एग्जाम जो है वो ओपन बुक टेस्ट होता है। आपको ये जो बुक मैंने दिखाया राइट, तो बुक आपको आप लेके जा सकते हो, उसका जो कॉपी रहता है, यू कैन टेक दैट बुक अलोंग विथ यू। वो ओपन बुक टेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, तो आपको गाइडलाइंस समझना और वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके ये कोड का ये गाइडलाइन है, ये कोड इसके साथ बिल्ड होता है या नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो समझ गए देन इट विल बी इजी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अगर जितना मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू टू अपीयर इन द एग्जाम। Shivraj also asking about what is the difference between M Pharma and B Pharma student for salary. देयर इज नो एज सच डिफरेंस। बी फार्मा के लोग को भी उतना ही सैलरी मिलेगा और एम फार्मा के लोगों को भी उतना ही मिलेगा, बट यहाँ पे यही जज होता है कि आपको ये मेडिकल कोडिंग फील्ड में कितना नॉलेज है। What is the ओके, exam fees, ma'am? exam fees is depend upon the APC. I think currently they are taking, I don't know how much they are taking. I think sir will guide you about this later on. Exam fees. You Okay. can check ऑनलाइन ऑल्सो, आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो एपीसी के साइट पे, आपको एग्जाम फी वहां पे भी दिख जाएगी। Okay. ओके, Sakshi is also asking online course is available. Yes, Sakshi, it is available in online mode and fees of that course is 20,000. You can pay in installment also. सो जैसे मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, यू कैन सी, आप गूगल पे जाके एपीसी भी देख सकते हो साइट, ये ऑफिशियल साइट है www.apc.com। तो यहाँ पे आपको यू कैन साइन इन, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के भी जो है वो दिखाई, यू कैन सी हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस आर देयर। सो दिस इज योर एपीसी साइट। सो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया सीपीसी सर्टिफिकेशन है, सीपीबी है, सीआरसी है, ये सारे सर्टिफिकेशन, यू कैन सी हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस आर देयर। ठीक है, सो दिस इज ऑफिशियल साइट, आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, Nusrat Sheikh asking about do we need to pay any fees for attempting this CPC exam? यस, देयर आर फीस फ्रॉम एपीसी। वो फीस आपको पे करनी पड़ती है, और फीस में अटेम्प्ट रहते हैं। अगर आप एक अटेम्प्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो या 2 अटेम्प्ट के लिए दे रहे हो, तो इसीलिए मैंने आपको बोला अब जब भी अटेम्प्ट दे रहे हो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अच्छा ये अटेम्प्ट में आई विल क्लियर माई एग्जाम। तो इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर your own way, like you have to solve the mock test and everything, then you can appear for the exam. Anyone else wanna ask anything? Hello, ma'am. Ma'am, which Yes. time attempt the appearing exam for CPC? Sorry, sir, this time what? Which Can you time repeat that? appearing exam? See, there, मैंने जैसे आपको बोला कि there are many slots, okay?
2-2 महीने के लिए या कभी कभी 15-15 दिन के बाद भी स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, यू कैन गो फॉर एनी स्लॉट विच वन यू लाइक। जैसे कभी कभी स्लॉट डिपेंड अपॉन आपके लोकेशन रहते हैं, कभी कभी मुंबई रहता है, पूना रहता है। सो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं। ओके, तो आप प्रिपेयर हो, आपको स्लॉट मिल जाता है, देन यू कैन बुक दैट स्लॉट और यू कैन गो फॉर द एग्जाम। तो ऐसे कभी नहीं होता कि ओके 6 महीने बाद का डेट है, देन आई हैव टू प्रिपेयर विद दैट 6 मंथ, ऐसे कभी नहीं होता है। इट इज लाइक 15 डेज, 1 मंथ के लिए वो जो है वो स्लॉट अवेलेबल रहता है। आपको स्लॉट अगर मिल गया यू कैन गो ऐसे। मैम अंजन इज आस्किंग, मैम आप जो मॉक टेस्ट लेते हो उसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं? देखो अभी मेरे पास जो मॉक टेस्ट है वो कितने 5 या 6 है। ओके, तो इसमें से मैं नहीं बोलूंगी कि 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे कभी नहीं होता है। ऑब्वियसली आप जो भी अगर आप नॉर्मल एग्जाम भी देते हो, तो अगर आपने पहले के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो ऐसे नेसेसरी नहीं है राइट कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस है जो एनाटॉमी के है, वो क्वेश्चंस आते ही है। जैसे कुछ चैप्टर्स है उसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ टॉपिक है उसमें से भी 100% क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आई विल टेल यू क्योंकि ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस तो आएगा ही। इन सारे ऐसे आई कैन नॉट से कि परसेंटेज वाइज के 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं या 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी वो जो ऑप्शंस रहते हैं, एंड वन मोर थिंग, जो आप सीपीसी जो देते हो वो जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन टेस्ट होता है। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो कभी कभी एक एग्जाम में समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 वो जो रिपीट हुआ, नेक्स्ट स्लॉट में भी वही क्वेश्चन आया है। लेकिन वो कभी कभी क्या करते हैं, फिर दे विल चेंज दी ये आपका ऑप्शंस, ए ऑप्शन को बी कर देते हैं, बी को सी कर देते, सी को डी कर देते हैं। इट विल डू लाइक दिस। ओके, बट कुछ टॉपिक्स है तो आई कैन अश्योर यू दे उसमें से क्वेश्चंस आते ही है 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कविता आस्किंग अबाउट, तो मैम ये जॉब कितने आवर्स की होती है? जॉब आवर्स इट इज 8 आवर्स। ओके, आपका 9 आवर्स का शिफ्ट रहता है, 1 आवर विल बी योर ब्रेक टाइमिंग और 8 घंटा आपको काम करना पड़ता Okay. I think Anjan asking about the placement. Yes, Anjan, we provide placement assistance to student after the completion of course.